What's up, everyone? Welcome to another podcast episode. I know this is another super long episode. It's an hour long episode, but I guarantee you, if you watch this entire episode, it is going to be super interesting. You will find a lot of informative things. The whole journey of Ravish is like ups and downs and ups and downs. Ravish, by the way, if you're watching this, thank you so much for doing this. Ravish is a YouTube creator. Please go and subscribe right now. He makes a lot of vlogs in Canada. He's now in Canada, but he came to United States on L1 visa, then went back, came back, L1 to H1, H1 to get green card approved, then then moved to Canada. Anyway, you will find out everything, but that's just a summary of how the life is in USA for him, and maybe that will apply to you, maybe it won't, but there's a lot of value in this podcast. Watch it and let me know in the comment section what do you think about it, and now I will let you enjoy the conversation. Thank you, Ravish, for doing this. Really means a lot to me and our UD squad community. I call my all the audience UD squad. So thank you and welcome to the podcast. I'm super excited for sharing your journey with everybody. Thanks, UD, for calling me on your channel, and hi to UD Squad. Yes, yes. तो सबसे पहले this podcast is gonna be like हिंदी इंग्लिश, क्योंकि मैंने ना पहले आपसे बात की तो हिंदी में बात की, तो अब वो पता है ऐसा हो जाता है कि जो लैंग्वेज में आप स्टार्ट करते हो वही लैंग्वेज मैं में तो बातें मेरी अंग्रेजी मेरी अच्छी भी नहीं है, मैं बोलूंगा तो भी समझ नहीं आएगी आधे लोगों को। सही है, तो फिर हिंदी इंग्लिश मिक्स हिंदी रहेगा। इंग्लिश मिक्स, यस। Okay, ठीक है, चलेगा. Before anything, let's just do a quick intro for people who might have not seen your videos or who might have not known you. So उनके लिए, where are you from? कहाँ से हो आप? अभी कहाँ पे हो? And all the fun stuff about you. ओके। सो मेरा नाम रवीश है। सो हरियाणा में एक शहर है रोहतक, दिल्ली के पास। हाँ. सो आई बिलोंग टू दैट। और आई डिड माय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम देयर। उसके बाद में आई केम, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट मैं आ गया था इधर कनाडा में, कुछ टाइम लगाया, फिर यूएस में कुछ टाइम लगाया, फिर वापस राइट नाउ सेटल्ड इन कनाडा, working as an architect. I do independent contracting, so banks generally जो trading के अंदर, so architect or a senior developer role उस तरह के I do an independent contracting. I don't work as a full-time employee anymore. So that's and then I'm trying to do some YouTube as a hobby. Yes. You're gonna be like super popular. By the time ये वीडियो जाएगा, आप like already 1 million क्रॉस कर चुके रहने दो भैया, रहने दो। ये मेरे को नहीं पता था कि आप पहले कनाडा आ चुके हो, उसके बाद यूएस आए। मेरे को लगा पहले आप यूएस आए फिर कनाडा गए। कनाडा में बहुत थोड़े टाइम के लिए आया था। इससे क्या हुआ, मैं कोई प्लान नहीं था। एक्चुअली कंपनी ने यूएस वीजा लगवाया था मेरा। सो आई वर्क फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म, लाइक अ यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म। एंड वो लोग क्या करते थे, प्रोएक्टिव L1 वीजा लगवा लेते थे लोगों का, कि लगवा के रख लो, जिनकी स्किल्स मैच होती हैं फिर कभी भेज देंगे। एंड देन आई गॉट दैट यूएस वीजा। Immediately after that, they said, you know what, we were planning to send you to US, but we have an urgent opening for Canada. Are you interested? I'm like, yeah, चलो चले जाएंगे, घूमने चले जाएंगे। क्योंकि मैं तो इंडिया से बाहर निकला नहीं था तभी। I came here, spent 6 months, and then went back to India. दो जो US की उस टाइम की अपॉर्चुनिटी थी वो गई। फिर थोड़े 6 महीने के बाद they came back to me again that now we have another US opportunity. Do you want to go? I said yes. So that's how. Then I went to US. Spent around 5 years, and then came to Canada. मेरे को पहले तो जानना है कि आप लाइक कितने साल से काम कर रहे थे बिफोर यू केम टू यूनाइटेड स्टेट्स? या मेरे को 2-3 साल हो गए थे। आई स्टार्टेड इन 2004। 2006 में मैं आया था कनाडा, एंड 2007 में आई वेंट टू यूएस। और फिर कनाडा से ही आपको बोला कि आप यूएस चले जाओ? नहीं, कनाडा में दे वांटेड मी टू एक्सटेंड, पर कनाडा में क्या दिक्कत थी ना, एक तो मैं इंडिया से पहली बार निकला था। सो मुझे आई wasn't very used to this style of living. मेरे फ्रेंड्स भी ज़्यादा नहीं थे, और जो लोग यहाँ थे ना शुरू से, जो मेरी टीम में लोग थे, दे हैड देयर ओन ग्रुप। कुछ उतना मज़ा नहीं आता था। तो जैसे आप पहली बार घर से निकलो, आई वॉज बैचलर, उनके साथ कुछ अच्छा जमा नहीं। एंड देन द वर्क वॉज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। So they wanted me to extend past 6 months. They said, we'll file your PR. At that time, I was like, I don't care about PR or anything. Like, मेरे को अपने career पे ध्यान देना. If I'm not happy,
in my work and then I'm not happy in the culture, then there is no point in तुम PR file कर दोगे. It doesn't mean much. Um, so I went back after 6 months. And I was like, I'm happy क्योंकि अगर मेरे को इंडिया में भी कुछ मिलता है, it's not a big deal क्योंकि मैं देख लिया मैंने कनाडा में, it's pretty like अच्छा है, work culture is good, but India is also not bad. So then there was another one after 6 months. I did a small project, and then after that there was a US opportunity, and then I said yes, okay. At that time I got married by that time, so I was like, okay, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, it will be kind of an extended honeymoon for us. Wife को भी US लेके चलता हूँ, and then we had a lot of fun. Like when you have your better half with you, right? And then you don't really care about friends or anybody, right? Yeah, we were like, or actually, then we had a lot of other people who were with like smaller families. They became our friends, so we had a lot of fun. So आप इधर आ गए, you came on L1 not on H1, right? Yes. Okay, so that is interesting. So L1 क्या होता है? L1 I think आपको पता होगा. L1 is an intra-company transfer visa. So उसको ही दे सकते हैं जो ऑलरेडी आपके किसी ऑफशोर टीम में 1 साल या उससे ज्यादा से काम कर रहा हो. So I was with that company for over an year. So they could file an L1. Now the benefit of L1 is there is no cap on it. Right. Length की लिमिट है, but there is no count पे cap नहीं कि 1 साल में कितना L1 देना है आपको. Correct. So H1 के ऊपर काउंट होता है, like 65,000 H1 वीजाज आने हैं. हाँ, बराबर. L1 पे there is no cap on that कि वो एक कंपनी ने 50 लोगों को भी भेजा तो कोई इशू नहीं है उनको. But that person has to be working with you for last 1 year. और अगर वो उसमें 2 रोल होते हैं, अगर तो वो बंदा आपके साथ में मैनेजरियल रोल में काम कर रहा है, you get an L1A. अगर वो नॉर्मल एज अ डेवलपर काम कर रहा है, then you get an L1B. Correct. पहले आप आए थे. So when did you come to US? Was it 2007? 7. Yes. Okay. Yes. 2007. Wow, interesting year to come. क्योंकि next year कुछ खतरनाक हुआ था. So how was your experience? Yeah, so experience was very good actually. So हम लोग आए थे, it was a telecom company. पूरे देसी लोग थे पूरी कंपनी के अंदर. Like all developers सारे देसी. We had a lot of fun. कहाँ पे? It was in Virginia. Okay. So there is a place, Reston, in Virginia. Okay. Yes. Near Washington DC. तो वहाँ पे हमारा ऑफिस था. तो मतलब एक पूरा देसी गैंग था. बहुत फन किया. रात को बैठ के पहले हम लोगों ने when you come from India, like you don't play poker or anything. When you come here, like you have to learn poker if you want to socialize with people. So learn poker. पूरी रात बैठ के हम लोग टीम वाले लोगों के साथ में पोकर खेले. सारे या तो अनमैरिड थे या बिना किड्स के थे, सब इसी सेम एज ग्रुप के थे. We used to go out a lot, so it was a lot of fun. आपको कोई ऐसा कल्चर शॉक हुआ था कि आप आए और से अरे ये तो यहाँ पे अलग है, इंडिया में अलग है, वैसा कुछ हुआ था? There's definitely culture shock, right? लोगों के एटीट्यूड में थोड़ा फर्क है. See, people like a more polite way of talking. Nobody yells at you. ऑफिस के अंदर फ्रेंडली ज्यादा है और आप किसी को भी जाके ऐसे तंग नहीं करते. जैसे इंडिया में क्या है, there is no privacy barrier anywhere. Like अभी आप किसी कलीग को भी आप कुछ बोलने जा रहे हो या just knock on the door and go walk, आवाज लगा दो किसी को. वो सब थोड़ा सा कल्चर उस तरह से डिफरेंट है. ऑफिस का जो वर्किंग कल्चर है, दैट वाज आल्सो डिफरेंट. देयर वाज मोर लाइक 9 to 5. इंडिया में जब भी हम काम कर रहे हैं, अगर मैं सेम टीम के लिए भी काम कर रहा था इंडिया में, आई वाज डूइंग लाइक 10 hour वर्किंग या 12 hours मेरा काम हो जाता था. और मोस्टली रात को कॉल्स लेनी पड़ती थी इंडिया से. सो व्हेन यू आर इन द यूएस, ऑल ऑफ दैट चेंजेस. आप 9 to 5 कर रहे हो, यानी 5:15 पे आई वाज आउट ऑफ ऑफिस, और उसके बाद में पूरा दिन आपके पास अपना है. सो यू जस्ट गो आउट, एंजॉय विद फ्रेंड्स. और नॉट मच ट्रैफिक. जहाँ पे हम लोग थे, यानी 5-10 मिनट में मैं घर पहुंच जाता था. तो यू फेल लाइक सो मच फ्रीडम महसूस होती थी उसमें. मतलब इंडिया में मेरा एक्सपीरियंस है कि सेम ही कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, थोड़ा पॉलिटिक्स ज्यादा होती है इंडिया में. यानी एक दूसरे के पीठ पीछे जाके कुछ करना, चुगली करना या वो करना, फिर कोशिश करना कि भाई मैं किसी तरह आगे निकलूं. हालांकि हर जगह ऐसा नहीं, आई डोंट वांट टू जनरलाइज इट, बट जनरली सॉफ्टवेयर कंपनीज में ऐसा होता है. और वो हमने खुद देखा था.
यूएस और कनाडा में ये थोड़ा कम होता है, ऐसा कम नहीं मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं होता, होता है बट बट कम, हाँ, यू कैन नोटिस इट कि कम होता है। राइट तो राइट वो कल्चर में फर्क पता चलता है डेफिनेटली। और दूसरा राइट क्या है, प्रेशर कम रहता है यहाँ पे। हम्म सो आपको एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती हैं। इंडिया में जो काम करने के लिए आप बोलोगे कि मैं एक हफ्ते में करूँगा, तो मैनेजर विल लाइक, क्यों लगेगा एक हफ्ता, वाई एक हफ्ता, 5 दिन में क्यों नहीं होगा, 4 दिन में क्यों नहीं होगा। या यहाँ पे मेरे को याद है, जब मैं नया नया गया, मैंने एक वीक का एस्टिमेट दिया था किसी स्टोरी के लिए। वो मेरा मैनेजर मेरे को आके बोलता है, कह रहा है यार, आर यू श्योर यू कैन डू इट इन अ वीक, आई थिंक दिस शुड टेक 3 weeks। मैंने बोला नहीं, आई थिंक ये एक वीक में मेरा हो जाएगा। बोलता नहीं नहीं, वी विल पुट 3 weeks, लेट द क्लाइंट कम बैक एंड वी विल सी व्हाट नीड्स टू बी डन। सो ये मेरे को ड्रास्टिकली डिफरेंट लगा कि वो ये करने के चाह रहा है कि अगर तुमको लगता है एक वीक में हो जाएगा ना, गिव अ लिटिल बिट बफर। इंडिया में थोड़ा होल्ड बैक करें, बफर, मतलब इंडिया में क्या हाँ, है कि अगर तुम बोलो तो दे लाइक कि अच्छा इससे कम में करो, इससे दे आर कम में गोना करो। क्वेश्चन यू, राइट, या माइक्रो मैनेज ज्यादा होता है, क्वेश्चन ज्यादा होता है ज्यादा वहाँ होता पे। डिड यू फेस रिसेशन और है। यस ओके यस, रिसेशन सी, मैं क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए उस टाइम काम कर रहा था, सो प्रोजेक्ट ढूंढना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। हम्म बट मैं कई प्रोजेक्ट्स के लिए, हमारा जैसे एक प्रोजेक्ट ओवर हुआ, तो नेक्स्ट हमारा जैसे आई वेंट टू डिज्नी, मैंने डिज्नी के लिए कुछ काम किया था। राइट आफ्टर डिज्नी वी हैड टू इम्प्लीमेंट द सेम थिंग एट ESPN। हम्म ESPN हमारा क्लाइंट था, सो दे कैंसिल दैट प्रोजेक्ट। Then I हम्म had to go back to India. I spent a few months in India. Then they found another project for me. Then they called me back. So कुछ महीने के लिए oh मेरे को इंडिया बीच में wow, जाना। Yeah. So and recession का बहुत असर। that was in 2008. That was in 2008. Yes. Acha, okay, Yeah. so then you came back whenever you got the project, Yeah. वो same Yeah. So 2008 में या 2009 में? 2009 में, so we went back end of 2008, and हाँ, then 2009 में we came back. okay, and Yeah. then since then you stayed in United Yeah. States, okay, Yeah. Yeah. okay, so कब ट्रांसफर, आई नो दैट यू ट्रांसफर्ड योर L1 to H1, तो वो कैसे Yeah. हुआ था? सी ये कंपनी बहुत अच्छी थी जिसके लिए मैं कर रहा था, दे वर वेरी गुड। बट उसमें ना क्या था कि बिकॉज दे हायर्ड मी इन इंडिया, मैं इंडिया के पेरोल पे ही काम कर रहा था। सो दे वुड गिव मी इंडिया, Oh, I didn't know that. Okay, या सो दे वुड गिव मी इंडियन सैलरी, प्लस दे वुड गिव मी पर डे मील्स, but एंड दे वुड हाँ, पे फॉर माई अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग। okay, बट लेट्स से मोटा मोटा अगर इफ दे वर चार्जिंग लेट्स से $200 an hour to the हम्म client, हम्म which is in the ballpark, they charge हाँ heavy, हाँ, you know। नहीं नहीं, आपने But सही नंबर बोला, तो हाँ, 200 से 250 होता है। ठीक है, $200 वो चार्ज कर रहे हैं क्लाइंट को। द मनी दैट दे वर गिविंग मी वाज लाइक 35 और मैक्स $40 इन बिटवीन समवेयर पर आवर। और हाँ, जब मुझे पता चला, शुरू में मुझे नहीं पता था, आई वाज लाइक कि ठीक है मेरी अकोमोडेशन पे कर रहे हैं, मेरे को इतना पैसा क्या करना है। बट व्हेन यू रियलाइज कि इट्स यू हु इज वर्किंग देयर, और योर कंपनी इज कीपिंग like yeah, 60% yeah, cut or 70% cut, only right, giving you 30%, हम्म then you feel कि अगर मैं कहीं दूसरी जगह पे चला जाऊं, you can get not all of it, but since much better than there. So तब मैंने explore करना शुरू किया, and then I found another smaller company, जिसके साथ में I went on an H1 visa. हम्म Then they also said we'll file your green card, हम्म things like that. But I also did not stay there for a very long time. On हम्म H1 also, I stayed with that company for 1 year. I'll okay, tell you later on. तो हाँ, so आपने, like, how did you convince the company, like was it the normal job search, जॉब कर रहे थे से ऑनलाइन अप्लाई नहीं करके? नहीं नहीं नहीं। सो when you live there, आप बहुत से लोगों से मिलते हो। हम्म जब आप इंडियन पॉपुलेशन से वहां मिलते हो ना यूएस में, ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज काइंड ऑफ द सेम स्टोरी। हाँ सभी लोग हम्म H1 पे होते हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन। सो मेरा फ्रेंड था, हम्म वो उस बंदे के साथ एक छोटी सी कंपनी के साथ काम करता था। द कंपनी हैड ओनली लाइक आई थिंक 15 एम्प्लॉइज थे उस कंपनी के, हम्म लाइक अ स्मॉल बॉडी शॉप काइंड ऑफ अ कंपनी। राइट सो मेरा फ्रेंड करता था वहाँ पे। सो मैं जब उससे बात करने लगा, एंड देन ही सेड कि ओके लेट मी टॉक टू दिस गाय, हम्म एंड देन he said we can file your visa, and then I said okay, let's do it.
Yeah, nice. So, would you? So, lot of my audience is like student based audience. तो मेरी सबसे ज़्यादा audience है जो international students यहाँ पे आते हैं पढ़ाई करने और फिर obviously turn into job. Would you say from your experience that networking is key to get a job? It's key. Yeah. You cannot, like, networking is number one. See, अगर Yeah. मेरा networking नहीं होती तो मेरा L1 से H1 होता ही नहीं. हाँ. Because you know it's not easy to find a sponsor जो आपको sponsor कर दे. And उसके बाद भी issues होते हैं, lottery है, cap है, वगैरह वगैरह सारी चीजें. Hmm. So, but the step number one is you should know somebody. Hmm. Then it becomes much easier. Wha- You can what is trust them. what is if you have to give one tip? How can students start making network or relationship? Well, it comes to, LinkedIn पे जाओ. Hmm. फिर जब भी आप जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करते हो ना, तो जो अगर मान लो आपको कभी रिप्लाई आता है रिक्रूटर्स के, Hmm. ट्राई टू ऐड देम टू योर लिंक्डइन. Hmm. और नॉर्मली लोग कुछ जॉब पोस्ट करते हैं लिंक्डइन पे, उनसे बात करो. फिर कई सारे फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, Hmm. इंडियन स्टूडेंट्स के फेसबुक ग्रुप होते हैं. वो जो स्टूडेंट आज है कल को वो जॉब लेगा कहीं, Hmm. अगर आपने वो ग्रुप्स ज्वाइन किया है, then talk to them. And Right. don't just say कि भाई, don't just join them कि भाई मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे Jo- कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो. हाँ. Just try to join, contribute something. कुछ उनको भी फायदा पहुंचाओ, फिर वो कल को तुमको भी कुछ फायदा मिलेगा. So Right. it's a give and take, and then do honest stuff. Like don't try कि मैं बस किसी तरह फायदा उठा लूं, Correct. like. But try to talk to people. आपके सीनियर्स होंगे कोई ना कोई जो कभी गए होंगे आपसे पहले, उनसे Yeah. बात करने की कोशिश करो. कुछ ना कुछ फिगर आउट हो जाता है. Absolutely. Yeah, 100%. I agree with everything you said, and that's what I've been telling to my audience कि जो आपने बोला, तो all those tips are awesome. So, why did you switch? एक साल के बाद क्यों switch किया फिर? So जो छोटी कंपनी थी ना जिसके मैं करता था, see there is always ये जितनी भी छोटी कंपनीज ऑपरेट करती है ना, there are a lot of small body shops होती हैं. वो क्या करते हैं, they don't have a client of their own, they don't have work of their own, but वो आपको अपने पेरोल पे रखते हैं, and then it's your job as a developer to go find a job, but they'll keep a अच्छा. cut from you. ये नहीं पता था मेरे को. अच्छा, ऐसा भी है यहाँ पे. Yeah. ये Yes, अभी yes. पता. मेरे को कंसल्टेंसीज के बारे में मालूम है जो आपको हायर करती है, उनके पेरोल पे रहते हो आप, बट वो लोग प्रोजेक्ट ला के देते हो और आपको प्लेस करते हैं, क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट नहीं मिलते आपको तो वो लोग सिर्फ आपको सैलरी दे रहे हैं, राइट? सो ये वाला पता था, Exactly. बट दिस इज योर्स इज डिफरेंट कि आपको जाके Yeah. ढूंढना है. बाप रे. आपको खुद जाके ढूंढना है. They'll take, let's say, 25% cut or 30% cut. You're still not paying 70%. जो जैसे भी ये बड़ी कंपनी होगी, TCS होगी मान लो, ठीक है, हाँ. TCS is asking $200. They're paying you maybe like $40. So they Right. keep a big cut. Hmm. जब भी आप खुद से जाते हो, आपको खुद मार्केट करना पड़ता है अपने आप को. राइट. You find a project. So I got a project in, I don't know, maybe first week में मेरे को project मिल गया था. 2-4 दिन में project मिल गया था पहला. Yeah. And then suddenly, like from $35 to $40, I jumped to like $70 per hour. Right. So then it's better for you, right? Like why do I want to work and then जो Yeah. भी उस कंपनी को वो काम तो मैं सेम ही कर रहा हूँ, right? और बेनिफिट्स, हेल्थ केयर और वो सब आपको खुद से करना है कि वो जो आपकी कंपनी ने हायर किया वो करते हैं? They split 50-50. 50, हर एक का ना. हाँ. So when you join, ये टर्म सारी डिस्कस होती हैं. Who will pay for your healthcare? But coming back to the question that you asked कि मैं एक साल क्यों रुका वहाँ पे? See, ये जो भी छोटी कंपनीज होती हैं ना, somewhere or the other we are just employees. हमें नहीं पता होता अंदर की बात, but somewhere or the other they bend some rules. Like it's not very clear कि वो जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ legally follow कर रहे हैं. Because they have to maintain some sort of a ratio of like how many people are H1, how many are local citizens, और बहुत सारी चीजें किस basis पे उन्होंने तुमको hire किया. Right. So there's some gray areas. Like I'm not an expert on those. Correct. So what happened is हमारे ही कंपनी के 2-3 लोगों को they got some audit. So they went to India and they could not come back. क्योंकि इंडिया में जैसे अब आपने वीजा, when you change your companies, you have to get a new visa stamped from US Embassy in India. Correct. मतलब आपको H1B वीजा अप्रूव हो गया तो you have to go and get the stamp. Yeah. So 2 या 3 लोगों के साथ हो गया यार 4 महीने के अंदर कि they went to India, they could not even come back. उन्होंने घर रेंट किया हुआ, they had a car here,
बाप they रे had they had other assets, right? So like you can't come back. So that फिर मुझे prompt हुआ कि यार even though it's better paying, हम्म but I don't want to be in that risky situation. हम्म So after completing 1 year, that's what he told me, like कि भैया मैं तुम्हारा वीजा कर रहा हूँ, but just stay with me for at least a year. हम्म Sometimes there was no contract or anything. It was just a mutual understanding. अच्छा Like हाँ कि मैं करता हूँ तो it's not like you come and then just if you don't like anything you leave after 2 months. So they have to spend money. करेक्ट करेक्ट So understanding थी उसके साथ में, मैं 1 साल तो रुकूंगा तेरे साथ में. Then after that I started looking for a full-time job to be more stable. और अब And तक then आपने स्टैंप नहीं मरा है, सिर्फ H1 भी अप्रूव हो चुका है. yes, हाँ ओके exactly. बराबर. Then when I went back to the market, I got a few options, few calls from other Wall Street banks. So 2-3 banks की मेरे पास offers थी, within a couple of weeks. Then I chose one of them and they transferred H1 visa. Then I went back to India to attend a wedding or something, and I had no issues getting visa stamp because this time it was a big Wall Street bank. Right. And like they have a big reputation. They do everything legally and no jhol jhal, nothing. Correct. हाँ. So got the visa stamped easily. Nice. But now you are an employee of that bank, right? Like you're not anymore. Exactly. You don't have to also find the project or anything. वैसा Yeah. भी नहीं था ना आपका. Exactly. Correct. और उनका अपना in-house काम है. Now it's हाँ. not there. I'm not working for their clients. Correct. बैंक के जो internal trading के softwares जो बनते थे capital market space में, Yeah. I'm developing those, so they can easily provide all kinds of proof and everything, right? करेक्ट. ओके. तो फिर आप वो कंपनी के साथ ही रहे थे जब तक यू डिसाइडेड टू मूव. ओके. Yeah, उन्हीं के साथ रहा था. They had an office in Canada. So फिर उस कंपनी ने क्या किया ना, they were happy with the work and everything. और मेरा उन्होंने ग्रीन कार्ड फाइल कर दिया था. तो ओके, सो लेट्स डू द टाइमलाइन. आपने 2009 वापस यूएस आए L1 वीजा पे. यू मूव टू H1B एट व्हाट ईयर वाज इट? 2010. अच्छा, 2010 में आप H1B पे मूव हो गए. 2011 में नई कंपनी में यू जॉइन. कंपनी में आ गया. Yeah. And then how long did it take for them to give you green card का, like when they filed Same green year. card? Same year. अरे सही, ये सही था. आजकल की जिंदगी में तो भाई 4-5 साल एटलीस्ट लगते हैं. वही है कि see the thing was every company has its own internal policy of how they want to approach green card. किसका करना है, किसका नहीं करना है, based on what skills they want to keep. So I don't know कि उनकी कंपनी की इंटरनल पॉलिसी क्या थी. मैंने उनको कभी बोला नहीं मेरे को ग्रीन कार्ड करना है, क्या करना है. उनके उसका जो उन्होंने लॉयर्स हायर किए हुए थे, they sent me an email directly. Not even my manager talked to me. Right. They sent me that your company has approved your green card processing. तो अगर तुमको करना है तो ये डॉक्यूमेंट हमको दो, we will start. So I was like okay. आगे से आके मेरे को बोल रहे हैं तो ये ले लो भैया, सारे डॉक्यूमेंट दे दिए उन लोगों को. राइट. एंड 2012 में आई गॉट माय I-140 अप्रूव्ड. वाओ. मतलब इतना जल्दी, बाप रे. आजकल के जमाने में दैट इज लाइक लॉन्ग सीन, लाइक यू कांट इवन इमेजिन टू गेट इट अप्रूव्ड इन अ ईयर. So after getting your I-140 approved, you can just stay in the country for as long as you want. कोई आपको Right. you keep renewing H1, keep renewing H1. अनलिमिटेड टाइम H1B कर सकते हो, और अनलेस जब तक आपकी प्रायोरिटी डेट नहीं आ जाती. Exactly. उस टाइम ऐसा लग रहा था कि शायद 5-6 साल में प्रायोरिटी डेट आ जाएगी. बट अभी ऐसा लग रहा है कि शायद 10 या 12 साल लगे. Who knows, मे बी 15 भी लग जाए. You don't know. अभी तो EB2 EB3 से भी नीचे चले गए. करेक्ट. So at that time उनके मेरे को तभी कितना 1 साल से ऊपर हो गया था उस कंपनी में. तो तभी उन्होंने मेरे को they were looking to expand in Canada. उनके कनाडा में ऑफिस था. मैनेजर के साथ काफी अच्छे मेरे रिलेशन थे. तो उसने मेरे को बोला कि यार तू, उसको पता था मैं कनाडा रह के, बोलता है do you know anybody in Canada? We're looking to hire a team lead. हमारे को नई टीम स्टार्ट करनी है.
दिस ग्रुप डिड नॉट हैव एनी प्रेजेंस इन कनाडा, बाकी उनका ऑफिस था. आई वाज लाइक कि तभी मेरे दिमाग में थोड़ा ये चल रहा था कि मुझे पता था कि कनाडा में, सी माय वाइफ वाज एन एमबीए हम्म, बट शी कुड नॉट वर्क इन द यूएस. क्योंकि आपके H4 पे थी. H4 पे थी. हमने एक दो बार ट्राई किया था H1 लेने का, बट वो वर्कआउट नहीं हो पाया. लॉटरी होती है, फिर स्पॉन्सर, उसका मेरे बट जितना स्मूथ उसका तभी नहीं तो हो पाया. तभी के टाइम पे H4 पे EAD मिलता था ना, कि नहीं? तभी नहीं आता था, उसके बाद आया वो. अच्छा. ओके. उसके बाद में आया. ओके. तो हमें लगा कि एक तो कनाडा के अंदर इट्स easier to get a PR. There is no like 10-year wait. हम्म. Second one was my wife could work from day one. हम्म. If I get a Canadian work permit, she राइट. could work from day one. तो मैंने उसको ऐसे ही बोला, और मुझे पता नहीं, मुझे लगा नहीं था कि वो दे विल से कि ओके यू गो. मैंने तो जस्ट सिंपल पूछ के देखा कि अगर कोई नहीं मिले तो मुझे बता देना, आई माइट बी इंटरेस्टेड. क्योंकि मुझे था कि अब ठीक है, यहाँ ग्रीन कार्ड इन्होंने कर दिया है. हम्म. और उससे मैंने टाइमलाइन पूछी, बात की, तो उसने मुझे बताया कि वी आर लुकिंग कि कोई 2 साल के लिए वहां चला जाए. अगर वहां नहीं मिलता तो हम यहाँ से 2 साल के लिए भेज देंगे किसी को. तो मैं वी इनिशियली केम ओनली फॉर 2 years ओके. कनाडा में, कि ओके. हम ठीक है कि हम वहां पे 2-3 साल लगा लेंगे, देख लेंगे कैसा अच्छा लगता है क्या है. बट आपका ग्रीन कार्ड का अप्रूवल या H1B को मेंटेन करने के लिए आपको वापस जाना पड़ता होगा ना यूएस में, कि आपने लाइक कंप्लीटली यू डिसाइडेड टू गो? H1, once your I-140 is approved, unless the company cancels it, nothing happens to it. It stays in the approved state, ओके. right? हम्म. बट H1B वीजा को करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर मान लो मैं उसी कंपनी के लिए वापस आ रहा हूँ, आई विल स्टिल बी कैप एग्जेम्प्ट. ओके. मेरे को कैप में नहीं, सो दे कैन एनी टाइम कॉल मी बैक. ओके. गॉट इट. सो वी केम टू कनाडा, और कंपनी ने मेरे को क्या बोला कि इफ यू आर नॉट श्योर, तो एक काम करते हैं, जस्ट गो देयर एंड स्पेंड अ कपल ऑफ वीक्स, ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय अस. जस्ट गो स्पेंड 2 weeks देयर. आपको अच्छा लगे तो आके हमें बताना, देन विल स्टार्ट द पेपर वर्क. सो अभी मेरी वाइफ तो उससे पहले कभी कनाडा नहीं आई थी. वी केम हियर, वी स्पेंड 2 weeks. हमने देखा, हमें लगा कि यार यूएस और कनाडा में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, एंड एक्चुअली कनाडा की बहुत अच्छी चीजें हैं. देन वी सेड कि ओके लेट्स गो फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. और आते ही हमने यूं भी नहीं किया कि आते ही यहाँ पे पीआर फाइल कर दें. वी सेड कि ओके लेट्स स्पेंड अ विंटर हियर. सी की विंटर बहुत हार्श होती है यहाँ पे. लेट्स सी हाउ इट गोज. राइट. So that's how we came to Canada, and then I helped them set up a team. Yeah. तो वो सिर्फ 2 हफ्ते में किया या यू स्टेड नहीं. फॉर? So 2 हफ्ते के लिए हम आए, हाँ. हमें अच्छा लगा, we went back, and then we started the process of moving to Canada. Then they filed my work permit. पहले 2 week तो सिर्फ विजिटर वीजा पे आ गए. ओके. ओके. देन हम लोगों ने पूरा प्रोसेस किया, बट 1-1.5 महीने में वर्क परमिट आ गया. एंड देन जो वहां पे रैप अप करना था, द सेम ईयर वी केम हियर. ओके. एंड दैट वाज 2014? 2012 में ही? अच्छा. 2012 में ही हम आ गए थे. बाप रे, कितना फास्ट पेस था. मतलब 2012 में आपका ग्रीन कार्ड भी हो गया, और देन यू डिसाइडेड टू कम हियर, एंड यू डिसाइडेड टू बहुत कई 2-3 चीजें तो ऐसे पैरेलल ही चल रही थी. हाँ. यानी जब भी हम फर्स्ट टाइम घूमने के लिए आए थे यहाँ पे, तभी तक हमारा अप्रूवल आया नहीं था. बट हमारे को ये था कि कुछ इशू होना नहीं चाहिए. बड़ी कंपनी है, मतलब दे शुड अप्रूव इट, और व्हेनेवर इट कम्स लाइक वी डोंट नो. और ये जो कनाडा का था वो आपका वर्क वीजा था? यस. ओके. सो देन यू मूव्ड टू कनाडा, यू डिसाइडेड कि भाई सब कुछ अप्रूव हो गया, आप चलो बोरिया बिस्तर बांध के आप चले गए. मतलब यू कंप्लीटली डिसाइडेड कि यू आर गोइंग टू गिव अप यूएस एंड गोइंग टू गो. नहीं, गिव अप नहीं. उस टाइम गिव अप का था ही नहीं ना. जैसे मैंने बताया कि कंपनी ने ऑप्शन दी थी कि कंपनी ने ऑप्शन दी थी कि अगर तुम्हारे को 2-3 साल में लगे वापस आना है, तो डोर्स आर ऑलवेज ओपन. हाँ. तो हमें भी यही लगा, ठीक है 2-3 साल रुकेंगे तो यूएस कभी भी जा सकते हैं वापस. कोई भी H1, अगर ये कंपनी नहीं भी करेगी तो कोई और कंपनी H1 कर देगी. बराबर. ओके. सो then you moved to Canada. What was it like? Did you feel, what was some major differences कि कनाडा और यूएस की लाइफ में क्या बड़े बड़े डिफरेंस? और सैलरी में डिफरेंस हुआ ही होगा मेरे को लग रहा है. यस.
सी मेनली तो हमारे को वी वर अफ्रेड ऑफ वन थिंग विच वाज वेदर. बहुत ज़्यादा ठंड है कनाडा में एज कम्पेयर टू द यूएस. अगर आप नॉर्थ में हो यूएस में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट लेट्स से यूएस में आपके पास ऑप्शन होती है ना, आप फ्लोरिडा में जाके रह जाओ सर्दी में, फ्लोरिडा, टेक्सास, टेक्सास में. हाँ, यहाँ तो हम कैलिफोर्निया. सबसे साउथ में है, टोरंटो में सबसे साउथ में, लेकिन यहाँ भी अभी माइनस -10 degrees Celsius समथिंग लाइक दैट, राइट. राइट. So that's the big difference. Otherwise सैलरी का बहुत फर्क है. See यूएस के अंदर it's a bigger market, there's more demand, and उस हिसाब से skills mismatch है थोड़ा यूएस में. तो अगर आपकी मैचिंग हो जाए ना स्किल, then you get paid more in यूएस. तो और जो कंपनीज है ना कनाडा में, उसमें बहुत सी ऐसी कंपनीज है विच आर यूएस बेस्ड कंपनीज जिनकी यहाँ पे ऑफशोर सेंटर्स हैं. सो इफ दे आर गिविंग यू अ जॉब हियर इन कनाडा, दे आर एक्सपेक्टिंग टू सेव सम मनी. राइट. सो मेरे अपने स्किल लेवल पे ना देयर इज लाइक 30% 40% पे कट. Wow, so that decision must be hard for you, or was it like you are going to take the pay cut, but you're gonna have more freedom? You're gonna have more freedom. One of the reason was that from day one, my wife had a work permit, open work permit. She could work for any company. ये एक बहुत बड़ा था. सिर्फ पैसा नहीं है, आपने पढ़ाई की है. जैसे मेरी वाइफ ने she did software engineering and then उसने ये किया MBA किया. तो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो उसका फायदा नहीं होता. मतलब उसका ना उसमें मजा नहीं आता. लाइफ ऐसे लगता है यार करने का क्या फायदा हुआ. करेक्ट. So she got a job within I think a couple of months after coming here. Okay. फिर दूसरा ये था, there's a lot of good benefits in the country. जैसे हेल्थ केयर है, it's totally free. हाँ, ये मैंने बहुत सुना है कनाडा का कि हेल्थ केयर पूरा फ्री है. तो सबके लिए फ्री है कि सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए? सबके लिए फ्री है. आप कमाते हो पैसा. कई लोगों ने कि जैसे मैं अपने चैनल पे कभी बात करता हूँ, लोग कहते हैं भाई फ्री कैसे हुआ, तुम टैक्स पे करते हो. सी टैक्स जो आप पे करते हो, टैक्स आप हर कंट्री में पे करते हो. करेक्ट. हाँ. लेकिन आप थोड़ा सा ज्यादा टैक्स पे करते हो कनाडा में. लेट्स से एज कंपेयर टू यूएस, यू पेइंग अ लिटिल बिट मोर टैक्स. बट व्हाट इफ यू लूज योर जॉब, देन यू आर नॉट पेइंग एनी टैक्सेस. आपको वो बेनिफिट तभी भी मिल रहा है जब आप टैक्स पे कर रहे हो या नहीं कर रहे. आप 6 महीने आपके पास जॉब नहीं है, बट हेल्थ केयर इज फ्री. तो वो बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कभी भगवान ना करे किसी की जॉब चली जाती है, यू डोंट लाइक, क्योंकि यूएस में तो आप सीधा आउट ऑफ स्टेटस चले जाते हो आप. राइट. तो मेंटेन करना मुश्किल रहता है उसमें. राइट. तो फिर जब आप कनाडा मूव हो गए, डू यू नाउ ऑब्वियसली यू हैव डिसाइडेड, आपको पीआर भी हो गया, राइट? आपने पीआर कब के लिए तभी अप्लाई कर दिया था या फिर यू वेटेड फॉर अ लॉन्ग? वेटेड फॉर अराउंड 6 months. ओके. उसके 2 रीजन थे. एक तो क्या है कि पीआर जो होता है ना यहाँ पे, वो एक सेट टाइम पे ओपन होता था उस टाइम. अभी देयर इज अ कंटिन्यूअस एक पूल है. बट उस टाइम पे ना क्या होता था कि जैसे हम 2012 में आए तो 2012 की साइकिल खत्म हो गई थी. सो नई साइकिल आई नेक्स्ट ईयर मिड 2013 में. राइट. तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने उस टाइम कैप हुआ करती थी. देयर लाइक कि वी ओनली हैव 300 visas फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर दिस ईयर. दैट्स ऑल. वी गोना गिव पीआर टू ओनली 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स दिस ईयर. अच्छा. हाँ. सो जैसे ही उन्होंने खोला, वी इमीडिएटली अप्लाइड and then we were in the 300. 300 is a very small number. Yes. If you consider like thousands of people applying. Right. And within 4 or 5 months we had PR. वो तो मैंने आपकी वीडियो में भी देखा. आपका लक वैसे भी you are very good at luck, so तो सही है. So you got the PR, you decided to take it, and obviously you still had an option कि अगर यूएस में हो जाता है तो then you have to make that choice कि यहाँ का PR रखना है या इधर का ग्रीन कार्ड लेना है. So now do you have citizenship or do you still on PR? You are a citizen of Canada? Yeah, we got citizenship, yeah. Okay, तो वो उसका कितना टाइम के बाद you can apply? 3 years के बाद आप अप्लाई कर सकते हो. हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, हमें 5 साल लग गए. वो इसलिए क्योंकि बीच में ना 2 बार गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी थी. अच्छा. So we were stuck in that backlog. So we had to wait 5 years, but generally 3 year के बाद आप कर सकते हो. Okay. And then it takes another, let's say 6 months to an year to actually get your passport. Okay.
And but all this you can still be in Canada working, no problem. You don't have to like go back to India and do anything. No. nothing. Okay. So that saves a lot of जो आपका US में जो पेन पॉइंट्स होते हैं ना लोगों के कि you cannot go back to India. I know so many friends जो इंडिया जा ही नहीं पाए पिछले 10 साल से. क्यों? I hope you're keeping a tab on the time. I don't know कि I'm क्या fine. टाइम हो I'm रहा fine. है. I'm just looking कि मेरा रिकॉर्डिंग अभी भी स्टार्ट है कि नहीं. So I think Sony में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. Canon में I used to have Canon, तो वो 30 मिनट में बंद हो जाता था. Yeah. So anyway, हाँ. Don't worry about time. Keep going. Right. So उसका इशू नहीं था यहाँ पे कि आपको Like, so इंडिया वापस जाने में कोई प्रॉब्लम. why were your friends not able to go back to India? Because of H1B? H1B, ना? See, I know somebody who was a director in a company. Properly उस कंपनी के लिए काम करा. There was not like a third party contracting or anything going on. उसका ग्रीन कार्ड फाइल हुआ था EB3 कैटेगरी में. He went back to India. They held him in India for 1 year. Wow. उसको 221G दे दिया था और 10 क्वेश्चन पूछ लिए. He was a director in a company. Can you believe it? बाप रे. A very good friend. तो तभी मुझे रियलाइज हुआ सी US is a very good country. It's a great country. And it's a land of opportunity. Everything is amazing, but this immigration thing is broken, especially if you are from India. Yeah. Do you ever regret? अभी आपका क्या, आप अब चेक करते हो कि आपका कनाडा ग्रीन कार्ड हुआ कि नहीं प्रायोरिटी में, कि you given up on it? कभी साल में एक बार देख लेता हूँ. अभी तो 2012 आया नहीं है वैसे. हाँ, अभी आई थिंक 25 नहीं आप अच्छा हाँ अभी वो बीच में आया था ना, चेंज कर दिया था उन लोग ने EB3 का डेट्स एंड EB3 बेटर हो गया. मेरा EB2 है वैसे. अच्छा. EB2 इज अभी इज नॉट इन प्रायोरिटी. राइट, इट्स इन अभी भी 2008 या 2009 का चल रहा है वो अभी भी. समथिंग या मैं उतना फॉलो करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे अब इतना फर्क पड़ता नहीं, बट एक बार कभी देख लेता हूँ. राइट. 1-2 साल में. Do you regret making this decision of moving to Canada in spite of having green card approval? No. Okay. As far as this piece is concerned, I don't regret at all. See, अगर मैं US में होता तो क्या होता? I would have been in the same position. H1B पे होता. Most likely मेरे को सेम ही कंपनी के लिए काम करना पड़ता. Well, you can change. No, after I-140 के बाद तो आप change कर सकते हो ना? Agreed. They still have to file your different like new petition, transfer, all this. So you're stuck in that paperwork forever and ever and ever. And then, correct. Not all the companies, but some companies, what they do, you're not the same as the other employees. In a way that let's say you want to change, they want to promote you or something. If they promote you, they also have to do some changes in the petition and all. If your salary brackets change and all those. So it's not. I never felt very free there. So right now I operate. एक और चीज जो मैंने सुनी है सबसे ज्यादा पेनफुल लोगों के लिए होती है ग्रीन कार्ड का फर्स्ट स्टेज अप्रूव होने के बाद, कि यू आर ऑन H1B विच इज गुड, बट आप H1B पे बहुत लिमिटेड चीजें कर सकते हो outside your work, right? Like you cannot do whatever business you want to do. कुछ और contract job नहीं कर सकते हो. तो exactly ये एक पेन पॉइंट होता है. दूसरा, see, it's very important. अगर तुम इंडियन फैमिली है ना, जैसे everybody, we have our parents. अगर आप इमिग्रेट होके आए, you have your parents most likely in India. And then there's always back of your head, you have this कि मेरे को उनकी टेक केयर करनी है. तो वो चीज अगर आपको 10 साल ग्रीन कार्ड मिलने में लग गए, उसके बाद 5 साल फिर सिटीजन बनने में लगे, तो 15 साल के बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए को US बुलाने के लिए अप्लाई कर सकते हो. और वो 5 साल प्रोसेस, और आपके पेरेंट्स को अप्रूव होने में 2-3 साल और लगेगा, एंड देन दे विल कम. सी, राइट नाउ वी आर सिटीजन्स इन कनाडा. हमारे
पेरेंट्स को भी हम पीआर फाइल कर चुके हैं. दे गॉट देयर पीआर, दे आर हियर विद अस राइट नाउ. Yeah, I saw अगर that. मैं यूएस में या हाँ, अगर कल मैं ही यूएस में देखा हूँ. मैंने वो तो वीडियो. आप क्या स्टोरी टेलिंग था भाई, एक नंबर था वो वीडियो. अगर सो फॉर पीपल हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, प्लीज गो एंड, ये मेरे को पहले बोलना चाहिए था बट एनीवे, प्लीज गो एंड वॉच रविश ब्लॉग. आई थिंक क्या नाम, आप रविश ब्लॉग्स ही रखा है ना आपने? रविश व्लॉग्स, यस हाँ, रविश व्लॉग्स, यस. लिंक तो होगा ही डिस्क्रिप्शन में, बट यू शुड वॉच हिज व्लॉग्स. आई एम बिग फैन. बट एनीवे, सॉरी, थैंक कंटिन्यू. यू, आपके थैंक पेरेंट्स का सो पीआर हो गया. या सो मनी इज नॉट एवरीथिंग राइट. एक हम्म, पॉइंट के बाद में यू डोंट केयर अबाउट कि ठीक है आपको 10-20 हज़ार डॉलर एक्स्ट्रा मिल जाए, क्या फर्क पड़ेगा उससे. लेकिन बट there are more possibilities if you have the freedom to do what you want to do. hmm. But Like we started a small kind of business, like a rental business or something hmm, here, which we could never have done, and yeah, that's doing great. Like it's small, but that's still, we are able to something. Right, play around with something, right? We can try out some things. right, right. Or so this small rental as in like the property renting. Property, yes. Okay. But say you can do that in US as well. Like I'm not saying you cannot, but I'm just giving you an example. Let's say I started developing some apps. मैंने 2-3 apps पीछे बनाई. Now I could do that very easily. Set up a new company and do that here all on my own. I don't need to be answerable to anybody. Hmm. So you get that freedom. वो चली नहीं चली, it's a different thing. There are 100 things. I could not make it a success, but I still tried. I was able to try that. Yeah, 100%. And now I want to talk a little bit about, क्योंकि मेरी बहुत सारी ऑडियंस है जो दो स्टेजेस में होगी. या तो वो डिसाइड कर रही है यूएस आना चाहिए, कनाडा आना चाहिए, और या फिर दे आर राइट नाउ इन यूएस, either on OPT and waiting for H1B, or right now studying, or H1B पे है waiting for green card. What is the job market for software development or technology in general? Like jobs है कनाडा में कि नहीं है? देखो कनाडा की मार्केट बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू यूएस. इफ यू जस्ट वांट टू नो अबाउट द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यू कैन नॉट बीट यूएसए. Hmm. हैंड्स डाउन. जैसे 10 times 20 times ज़्यादा जॉब्स हैं यूएस में फॉर श्योर. Right. It's a little harder to find a job in Canada. They pay you less money. You Hmm. pay more taxes. But in the end, it depends whether you want peace of mind or more money. That's a choice you have to make. Yeah. If you want more money, don't come to Canada. Stay in the US. You'll make more money for sure. But if you want a peace of mind, you want an option to bring your parents sooner, you want to settle down sooner, you want an economy which is just Canada में ना, it's also a free market, but it's a more socialist free market. यानी health care है, आपकी job चली गई, even if you are on a work permit, you get employment insurance जो US में नहीं होता. What about education? Is that free too? Yes, that's free. That's paid by the government up to grade 12. Grade 12. अरे क्या सही है. Right. Universities are cheaper than US. Right. So raising a family, अगर आप उस point of view से सोचते हो, Canada is, I think in my view, slightly better than US. In terms of settling, yes. In terms of settling, 100%. मैं जब लोग मेरे को पूछते हैं कि क्या चूज़ करना चाहिए, तो मैं यही पूछता हूँ कि अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है. अगर लॉन्ग टर्म गोल है कि भाई पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है और फिर सेटल होना है, तो फिर कनाडा इज़ प्रॉबली बेटर चॉइस. बट अगर आप अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, लाइक यू वांट टू जस्ट स्टडी, गेट द एक्सपीरियंस ऑफ द मार्केट एंड देन गो बैक टू इंडिया, देन यूएस इज प्रॉबली बेटर फॉर यू. Exactly. And the third option which I tell most of the people should choose is like कि आप पढ़ाई करने आओ यूएस में, आपको 3 साल का ओपीटी मिलेगा, अगर H1B हो जाता है ग्रेट, गेट एक्सपीरियंस, मेक मनी, सेव इनफ मनी. Canada is not going away. You can still apply for Canada. अब तो Canada का PR points भी है, तो if you have masters education का points, if you have US work experience के points, तो it's even better for you in terms of getting Canada PR. And so the only problem with that approach is you have to be open to like move your country and start all over again. Yes, you need to be open. Even not just open, जब यहाँ पे आते हो ना, you have to be very flexible कि सब लोगों को आते ही day one पे ऐसी job नहीं मिलती जो उनको चाहिए. For example, my wife did an MBA. Initially, she was looking
for in a finance role में वो देख रही थी, which did not work out, but we were flexible. We were like कि ठीक है, उससे पहले उसने engineering किया है, हालांकि she didn't want to be a programmer, she didn't want to be a developer, so she moved into quality assurance. But Oh, उसको ये था कि I'm flexible. It's still better than doing nothing and sitting home and being a housewife. So she was flexible. She got into software testing. नाइस, सही। आई नो हम वापस से ये करने वाले हैं एंड तभी अपन थोड़ा और ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें पे बातें करेंगे। आई वाज जस्ट वेरी क्यूरियस अबाउट जर्नी एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन अदर पार्ट एज वेल, सो विल डेफिनेटली आई वुड लव टू ब्रिंग यू बैक। फाइनल क्वेश्चन, आई थिंक 2 क्वेश्चन फाइनल। वन इज़ what is the salary range for सॉफ्टवेयर डेवलपर हु इज़ नॉट एक्सपीरियंस, मतलब जो अगर फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट वहाँ पे उसने मास्टर किया तो क्या होती है, और समवन हु हैज़ एक्सपीरियंस? सी अगेन सैलरी यूएस से थोड़ी कम रहती है, बट आई गिव यू हाई लेवल आइडिया कि अगर कोई फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज है, यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 75 80 85,000 डिपेंडिंग ऑन हाउ योर स्किल लेवल इज एंड किस एरिया में डिमांड ज्यादा है वगैरह, वो 75 थिंग्स is कीप not चेंजिंग. bad at all. I mean, oh, it's a Canadian US dollars. Okay, It's a Canadian. Canadian use, so that's equivalent to maybe 55 Okay, 60,000 US dollars, okay. right? And then once you have, let's say, 3 4 5 year experience, you can be somewhere around 90 to Hmm. 100. Hmm. And then 7 8 10 years experience, हाँ, 110 वो तो 120, but that's pretty much the cap if you are an employee. okay. Then there are more like other benefits you might get, like bonuses, more bonuses, Stocks. stock options. Okay. और what are living expenses क्या है कनाडा में? Like अगर someone is making 75,000, can he or she survive? It depends on where they are. Okay. Like if you are in Toronto or Vancouver, they are the most expensive city. Actually में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर की जॉब्स टोरंटो नंबर 1 पे होगा इस टाइम. So there is a high possibility कि आप यहाँ आते हो तो आप टोरंटो में आओगे. So अगर आप मान लो टोरंटो के, टोरंटो is one of the most expensive right now in Canada. Real estate is the number 1, but otherwise, except real estate, everything else is affordable in my view. So let's say आप डाउनटाउन टोरंटो में रहना चाहते हो, you want to live in a 1 bedroom apartment that's going to cost you in a decent one like $2,500. Wow. But then if you're ready to commute like 1 hour 1.5 hour, move into the suburban areas, then you're paying maybe, let's say, $1,700 $1,600 to $1,800 somewhere around that. And so a lot of people commute, and that's your biggest expense. और अच्छा, और टैक्स कितना होता है? मतलब अगर 75,000 सैलरी है तो उसमें से टैक्स कितना कटता है? Roughly मान के चलो 75% पे you're paying around 30% tax. अच्छा, Roughly बता रहा हूँ, again it depends on आप कौन सी प्रोविंस में हो. Right. Every province, like US स्टेट में हर स्टेट का अलग होता है. ऐसे ही every province has their own, थोड़ा जैसे क्यूबेक में हो गए slightly higher. So right. but very rough idea. हाँ, yeah, rough, we are taking rough numbers. तो 75,000 सैलरी होगी तो 30% अगर टैक्स लगता है तो probably I think the salary would, हाथ में in hand will be like 48 के आसपास, तो 4,000. 50, yeah, somewhere 48 to 52, somewhere around that range आनी चाहिए. हाँ, मतलब 4 साढ़े 4 के आसपास मंथली होगा, और उसमें से अगर 2500 चला जाता है रेंट में तो फिर बचता ही है 1200 Yeah, 1500. but then people don't live like that. Then what they would do is हाँ, like मतलब share with रेंट, somebody. हाँ, करेक्ट. अगर बैचलर है या फिर दोनों को काम करना पड़ता है. Right. And if you want to buy something, also it's very expensive. Not just renting. Real estate is very expensive in Canada right now. Everywhere or just in like Toronto and Vancouver? Everywhere. Everywhere it's expensive. Yeah, Toronto तो skyrocket कर चुका है. Toronto and Vancouver, it's very hard. Like I'll give an example. Let's say you want to buy a 2,000 square feet townhouse. हाँ. You're looking 1 million plus. क्या बात कर रहे हो? बाप रे. Yeah. So मेरा In जो घर है Toronto. वो 2,000 square feet है. मतलब its total is 10,000 square feet. 2,000 is the house. So that is only 350
350. Yes. I'm talking about Toronto. तो मैं हाँ ये कहता हूँ कि मान लो आप टोरंटो से 1 घंटा दूर चले गए. Let's say there is a city called Brampton. A lot of हाँ Indians live there. राइट. Brampton में चले गए, then it would be maybe let's say 800, 750, 800. बाप रे, फिर भी बहुत एक्सपेंसिव है. हाँ मतलब Yes. इट्स एक्सपेंसिव. वाओ. ओके. So that again, obviously, but the peace of mind is there, right? Like मतलब long Yeah. term अगर सोच रहे हो तो peace of mind is that you can invite your brother, sister, father, mother, सबको बुला Yeah. सकते हो. So Yeah. it's definitely there, and all the people who you invite can also work in Canada. मेरे like in this case, it's so hard. मतलब they have to come here, then they have to get work permit या कुछ ना कुछ रहता है. So you cannot do all of it. उसमें ये है कि जैसे भाई को मैं ऐसे पीआर पे बुला नहीं सकता. अच्छा. मतलब मैं यूं नहीं कह सकता कि मेरा भाई है तो इसको भी पीआर दे दो. What they can do is when they file their PR, they'll get a few extra points because you have a sibling there. So let's say अच्छा. there is a cut Okay. off. So everybody gets some points. It's a point based system. So you get some points. Let's say you get 465 points तुम्हारे बनते हैं. And then if you add me, my brother adds me, they'll get 470 or something, let's say. Right? हाँ And right. that 5 points can make or break your application. राइट 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 राइट. सही यार, बहुत मज़ा आ गया. दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट पॉडकास्ट एपिसोड, क्योंकि सो मच वी कवर्ड. सो आई Yeah. होप ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा. आई एम श्योर दे फाइंड इट वेरी वैल्यूबल. व्हाट इज़ वन लास्ट वर्ड्स ऑफ टिप्स विद विजडम फ्रॉम यू, जो स्टूडेंट्स है, प्रोफेशनल्स है, बिकॉज you've seen so much of life now. I know I'm making you old, but I am an old guy. no, you're not. You're super young at heart. So Yeah. See, first of all, thank you for inviting me. Not first of all, अब तो खत्म हो रहा है वैसे चलो. But thank you for inviting me and giving me this opportunity to talk to your audience as well. See, I think flexibility is the number one tip that I would give people like जो young है. Don't be too rigid on कि मुझे यही करना है तो यही करना है. I've seen कि मैंने ऐसे behave किया है and I regretted it later. The more flexible you are, you never know where the world will take you. Like so जो जैसा वो movie में बोलते हैं ना पूरा क्या बोलते हैं फिल्मी लाइन की, you know, this वो the universe has a plan for you. Now I've after some time and when I think back and I'm like कि ठीक है, maybe universe had a plan for me and then I just followed it and then I'm here. right. So जो opportunity मिलती है just go with the flow kind of a thing. Go with the flow. Right. एक और I'm just curious, अगर आपका ग्रीन कार्ड हो जाता है by any chance, US का ग्रीन कार्ड, so would you want to move or कि नहीं? We can definitely think about it. हम बहुत बारी सोचते हैं, discuss करते हैं. We can definitely try it out one more time. There's no harm in that because now once we are citizens, we can anytime come back to Canada. Correct. Right? There is no, and also I have like जब इंडिया में भी थे, right? तभी भी मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारे को एक ही जगह पर रहना है. Moved 5 साल के अंदर moved to 10 different cities. Kept on moving. जब भी हम तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. Like if I get a good opportunity, I'll come back. No issues. Right. Sahi. Yeah, and with Canada, you can also, Canada and US, you can also have dual citizenship. You can have dual citizenships, yes. Right. Sahi hai. Chalo, thank you so much for this. I'm sure we are gonna do this again, and good luck. I know you're gonna cross 100K, 1 million very soon. So, and अगर आप कैलिफोर्निया आते हो तो please बताना मेरे को. I would love to definitely call you, man. And then we you know, kind of similar questions मेरे को भी लोग पूछते हैं मेरे चैनल के ऊपर कि US में you stayed in the US and then you are in Canada, and then I'm also planning a similar US and Canada, and I would really appreciate and that you can contribute in that. 100%. So 100%. I would let's plan that, and we'll 100%. Thank you for inviting me once again. Yes, absolutely. It was so much fun talking to you. 100%. Until our next one. Keep smiling and keep hustling. Nice.